Hello, please let me know whether I am audible to all of you or not. Hello, Shubham, where are you? क्लास ଅଛି ଏବେକା Okay, you are in class. Okay, today ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ inconvenient time ରେ class ଟା ନଉଛୁ. Okay, ତ ତମେ ଯଦି class କରୁଛ, don't worry. Okay, attend your class and you can watch the video later on. Okay, today we are yes going to today. thank you sir Okay, Shubham, you प्रणाम sir can attend your pranam. Kumar, are you free? Hello, ହଁ ସାର୍ hello. ହଁ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ଦେଖିଲ? ହଁ ସାର୍ ଦେଖୁଛି ନା ସାର୍ ହଁ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଥିଲା ତ ସେଟା ଦେଖିଦେଇଛ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଜିକା ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷକି ଯିମା। ମମତା କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ହିୟର ମି? ହ୍ୟାଲୋ ମମତା, ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମମତା, can am I audible to you or not? Do you know how to turn on the mic? Mic କେନ୍ତା କରି ଅନ୍ କରସନ୍ ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ ୟା ଫ୍ରି? You are new to this app, that's why I'm telling. Okay. Okay. କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହବା ପଚରାବ। Whiteboard, is the whiteboard visible clearly or not? Yes, it is visible clearly. Okay. So today we are going to start a new chapter called voice. Today we are going to start a new chapter called voice. You have already known that in English language there are two types of voice: active voice and passive voice. Active voice, which includes general structures, okay, and passive voice that includes special structure. It has its special structures, and those structures we are going to discuss today. ଆମେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଆଜିକା ପଢ଼ବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ। ଓକେ, ତୁମମାନେ ଅଛ ଦୁଇ ଜଣ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଦୁଇଟା ଭଏସ୍ ଥିସି। एक्टिव वॉइस के हम एक्सप्रेस करवा लगी जेंडर स्ट्रक्चर, जेंडा हमर मोडाल रो स्ट्रक्चर अछि, जेंडा हमर टेंस रो स्ट्रक्चर अछि, जेन 12टा स्ट्रक्चर अछि, सेट द्वारा से तार हेल्प करि हम एक्टिव वॉइस के गाना करसु एक्सप्रेस कर पासु। बट व्हाइल वी नीड टू एक्सप्रेस a voice that is in passive, or while we need to express something in passive we need some special structure. हम केतेरा स्पेशल स्ट्रक्चर नीड करसु। ओके, तो से स्पेशल स्ट्रक्चर माने पढ़मा, से स्पेशल स्ट्रक्चर हमें का गुरी नीड करसु पढ़मा, और से स्पेशल स्ट्रक्चर ओके रो मीनिंग काना, ओके ताकर मीनिंग काना सेटा भी पढ़मा। सभे तो बते देसन, सब कोचिंग रे बते देबे हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, बट व्हाई वी नीड टू यूज पैसिव वॉइस and what is the importance of using passive voice in which cases, केन केसेस रे हम पैसिव वॉइस यूज करबा। ओके, केन केसेस रे पैसिव वॉइस यूज करबा तार मीनिंग काना रहबा, से जिनिसटा नै बतन के बट आमे से जिनिसटा डिस्कस करबा। ओके, ठीक अछि। इंग्लिश लैंग्वेज में दुईटा वॉइस थिसी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आमे देखू केते बेले एक्टिव वॉइस यूज करबा, केते बेले पैसिव वॉइस यूज करबा। We can use active voice in every cases. We can use active voice in every cases. हमें all cases रे active voice के यूज करि पारमा। ओके, मते टिके रेस्पॉन्स करथिबो, जदि नै दिसबा कि हमर आवाज जदि क्लियर नै सेबा त मते रेस्पॉन्स करबो। ओके, एक्टिव वॉइस के हम एवरी केसेस वी कैन यूज एक्टिव वॉइस जेते बेला हमको लागबा जे गुटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट रो इंपोर्टेंस अछि, जेते बेला हमको लागबा गुटे सेंटेंस रे कहार इंपोर्टेंस अछि, सब्जेक्ट रो इंपोर्टेंस अछि। ओके, सब्जेक्ट रो इंपोर्टेंस अछि, सेते बेला एक्टिव वॉइस यूज करमा। ओके, आ पैसिव वॉइस केते बेला यूज करमा, वी यूज पैसिव वॉइस इन थ्री केसेस। पैसिव वॉइस के हमें तीनटा केसेस रे यूज करसु। आगना से केसेस लेट्स डिस्कस। पहला केस हला, इफ द सब्जेक्ट is unknown. If the subject is unknown, hidden, or we do not have any idea about in a sentence, we do not have any idea about the subject, then to write that subject we have to use the structure of passive voice. We have to
follow passive structure in that sentence बुझी पारलो कि नहीं जदि आमे काना गुटे सेंटेंस रे ना जानी जे सब्जेक्ट की है तो से सेंटेंस के एक्सप्रेस करबा लागि आमे काना कर परमा पैसिव वॉइस रो यूज करि परमा दुई नंबर ता काना जदि ऑब्जेक्ट रो इंपोर्टेंस बेसी थिबा इफ ऑब्जेक्ट carries more importance than the subject. Okay, if object carries more importance than the subject, बुझी पालो more importance than the subject. आमे पैसिव वॉइस के तीनटा कंडीशन लगी यूज करसु कैंसी भी न्यूज़पेपर उठे दियो देखबो जेते एक्टिव वॉइस नु देतिबा सेते पैसिव वॉइस नु भी देतिबा ओके तो पैसिव एक्टिव वॉइस के तो आमे जेते बेले सब्जेक्ट रो इंपोर्टेंस थिसे सेते बेले एक्टिव वॉइस के यूज कर देसु व्हेन वी थिंक दैट ओके ई सेंटेंस से सब्जेक्ट इंपोर्टेंट है सेते बेले आमे का करसु एक्टिव वॉइस से जिनिसटा के लिखि देसु पैसिव वॉइस केते बेले लिखसु जेते बेले सब्जेक्ट विषय रे हमर किछि आईडिया न थे इफ वी डोंट नो हु इज द सब्जेक्ट व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दैट केस ओके वी कैन यूज पैसिव वॉइस जदि गोटे सेंटेंस रे मते लागला जे ऑब्जेक्ट रो बेसी इंपोर्टेंस अछि आई विल गिव यू एग्जांपल डोंट वरी ओके जदि मते सेंटेंस रे लागला ओके अनेबर काना हला देखो मुई गोटे जगह के बोली जाई छै से जगह रे मुई गोटे पत्थरटे देखली बहुत बड़ पत्थरटे से पत्थर रो इतिहास बहुत माने किछि गोटे स्ट्रांग इतिहास छै से पत्थर के सेनो गौतम बुद्ध आसी के रखिथिले आ तार ऊपर से बसी के तपस्या करथिले तो से जगह के जतले जिमी से जगह रे मुई से पत्थर के जन देखमी बुझी बार जो सेनो मोर इंपोर्टेंस जहने रहे ओके मोर भाई तो बहुत लोग सेनु देखुथिबे सेनु से पत्थर इंपोर्टेंस बेसी रहबा तो मुई जदी कहली जे पत्थर के मुई देखली से जगह के जेई करी सेटा जदी मुई एक्टिव वॉइस रे कहमी तो मोर सेंटेंस टा काना हिबा वीक सेंटेंस हिबा टू मेक माय सेंटेंस स्ट्रांग सेंटेंस to make my sentence a strong sentence in that case I have to use passive voice because सेनु जे ऑब्जेक्ट अछि बुझि पालो तो से पत्थरटा ओके ऑब्जेक्ट काहे के कहा जेसी मैं तुमको ऑलरेडी कहि देनी व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काहे के कहा जेसी मैं ऑलरेडी कहि देनी इटा उडे अंडा कांसेप्ट है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इटा उडे अंडा कांसेप्ट है ओके दुई जन सुनु जो मोर कथा हेलो ममता आर यू देयर हेलो कैन यू हियर मी ममता प्लीज रेस्पॉन्स मी हाँ सर ओके थैंक यू मौसुमी केतला जॉइन करलो तमे सर है बे ए 2 जॉइन करलो मिनिट तो आगलो ओके हां बेले एटा मुई जाने पैसिव वॉइस रो दुईटा पॉइंट कहली जानलो दुईटा पॉइंट तमे क्लियर अछो पैसिव वॉइस रो का को यूज करमा पैसिव वॉइस कीजे नहीं सर okay okay don't worry I will repeat it only for you again okay ठीक আছে if देखो पैसिव वॉइस की केतला यूज करवा हमें जदी if the subject is unknown or hidden in the sentence पूरे सेंटेंस रे जदी सब्जेक्ट का नाम আছে unknown so we don't know about the subject then to express that sentence we have to use passive voice okay or the structure of passive how can cases है तीनटा cases for three cases okay three cases ये तीनटा केसेस लागि बोल हम पैसिव वॉइस के यूज करसु इफ ऑब्जेक्ट कैरीज मोर इंपोर्टेंस देन द सब्जेक्ट जदी ऑब्जेक्ट रो इंपोर्टेंस बेसी होचे बेले ओके हमें काना यूज करमा गोटे सेंटेंस रे जदी सब्जेक्ट रो भी जो इंपोर्टेंस ऑब्जेक्ट रो अछि ओके और ऑब्जेक्ट रो इंपोर्टेंस के शो करवा लागि ओके जेन ऑब्जेक्ट वाला गोटे सेंटेंस रो तार इंपोर्टेंस के शो करवा लागि हमें काना यूज करमा पैसिव वॉइस यूज करमा ओके एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट गोटे ऑब्जेक्ट रो डेफिनेशन बहुत दिन माने इंग्लिश निजा पढौ जन से माने कन्फ्यूजन ऑब्जेक्ट कान है बुझि पालो तो किंतु मु तुमको गोटे स्पेशल डेफिनेशन पे तमर बैच के भाई लागु छे मते जहा सोर पडछे ऑब्जेक्ट रो गोटे स्पेशल डेफिनेशन पे सेल्फ मेड डेफिनेशन पे मु तुमको कहि दे देली तो जनता देखो मु लिखु जे वी लिव इन ए बिल्डिंग कुमार इन ऑब्जेक्ट केंट कुमार दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ऑब्जेक्ट की है सेंटेंस रे वी लिव इन ए बिल्डिंग Hello, Kumar, are you there? Yes, Mamta, you can answer me. We live in a building. What is the object in this sentence? Which word? This sentence is made up of 1, 2, 3, 4, 5, 5 words. Okay. तो इन ऑब्जेक्ट की है. What is the object in this sentence? Object की है. बिल्डिंग very bad okay next object is a building
नाउ मते कह मौसुमी मते कह जे ए बिल्डिंग ता काउ ऑब्जेक्ट नै for a building is not an object. हेलो मौसुमी ନାଇଁ ଜାଣି ସାର୍ ମୁଇଁ ଅବଜେକ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। मुझे तुमको ऑब्जेक्ट विषय से दिन एतकी भाषण देली तुम भूली गल न जे गुर से प्रीवियस वीडियो के देखो ऑब्जेक्ट विषय रे हमर खाली से दिन पले गई मुझे ऑब्जेक्ट विषय रे एतकी बुझाली तुमको एतकी जगह कवर कर बुझाली हाफ एन आवर खाली ऑब्जेक्ट डिस्कस करबारे पले गई और तुम्हें भी बिल्डिंग बनमी बोलते बेले कोर्स करके तुम्हारे काना फायदा देबा ओके जे गुर से वीडियो के देखो नूर ओके रिकॉर्डिंग इज स्टिल अवेलेबल ओके तो तुम्हें से वीडियो केनु अछि जे नूर में कहितली तो तुमर बैच के कहितली तो मते एतकी कह कहितली कि नै कहितली ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କିନା ପଢବା ସାର୍। पक्का आर यू श्योर मते पूरा श्योर अछि मैं तुमको ऑब्जेक्ट विषय रे कहितली कुमार तुम भी भूली जी चगे मैं तुमको से वीडियो टा पठे देमी that video is still available the recording of that video is still available in our recording list okay मैं से ऑब्जेक्ट we have already discussed about that जेतले सब्जेक्ट पढ़ाना लास्ट आर के सब्जेक्ट वर्ब जेतले पढुतली पहला देखो सब्जेक्ट वर्ब तीनटा क्लास जेचे सेथि ऑब्जेक्ट विषय रे भी डिस्कस करा जेचे तो तुम्हें जे विषय प्लीज देखो ओके ऑब्जेक्ट केनटा तुम्हें फिर थोड़ी इनो में टिके बार कह दोछन ओके ए बिल्डिंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट हियर ओके बिल्डिंग का ऑब्जेक्ट इन ने से का गुड ऑब्जेक्ट ने से वाला देखो मैं ऑब्जेक्ट रे गुड डेफिनेशन दे तुमको दे दो ये डेफिनेशन तुम्हें कैंसी बुक नो ने पो you cannot find this definition in any book okay anything यहाँ नि भेल के स्वर पढ़ी पारे मौसमी के anything which is affected by the verb anything which is affected by the verb is called an object anything which is affected by the verb is called an object we live in a building see मुई सेंटेंस दे दिली इन वर्ब किए लिव ओके तुम्हें कहा कहलो ममता आंसर्ड मी दैट ए बिल्डिंग इज एन ऑब्जेक्ट ओके जते हम गोटे बिल्डिंग रे रहू जते हम गोटे घरे रहू से रहबार कार्य द्वारा से वर्ब द्वारा एनीथिंग व्हिच इज अफेक्टेड बाय द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट गोटे सेंटेंस रे वर्ब द्वारा जे जिनिसटा अफेक्ट होदिसी से ताके ऑब्जेक्ट कह जेसी इन वर्ब किए लिव द्वारा ए बिल्डिंग ता इफेक्ट हवा मुई गोटे घरे रहले से घर छोट हो जिबा गे बड़ हो जिबा गे से घर दौड़ी बसवा गे कि से घर उड़ी बसवा गे ना हुए अंदर किछि प्रकार चेंजेस तो वर्ब द्वारा बिल्डिंग ता इफेक्टेड न हवा जेहेतु वर्ब द्वारा ए बिल्डिंग ता इफेक्टेड न हवा ए बिल्डिंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर इन दिस सेंटेंस ए बिल्डिंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओवर हियर ओके वी आर प्लेइंग फुटबॉल ओके तो देखो प्लेइंग इज द वर्ब हियर इस सेंटेंस रे की वर्ब है प्लेइंग वर्ब है तो वर्ब द्वारा फुटबॉल अफेक्टेड रहू छै क्या यस अफेक्टेड रहू छै जेतेबेला हम फुटबॉल खेलु छु फुटबॉल चेंजेस होई छै गुटे ठान गुटे ठान के जो छै केतेला उडू छै बुझि पाला तो फुटबॉल अफेक्टेड रहू छै अफेक्टेड मींस काना तार पोजीशन रे चेंजेस असबाता तार आकार तार शेप रे चेंजेस असबाता से तक अफेक्टेड कहा जायसी तार पोजीशन रे तार शेप रे जदी चेंजेस आसु छै से तक अफेक्टेड कहा जायसी ओके वी आर प्लेइंग फुटबॉल ओके इन फुटबॉल जन व्हाट আছে ई वर्ब द्वारा अफेक्टेड रहू छै कि नै रहू छै यस रहू छै that's why it can be called an object दि प्रकार ऑब्जेक्ट से भी कहि दिली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुम ना पढ़ाई बोलु जो ओके तुम मुई से वीडियो रे तुमको देखे देमी आजिगा जेंटा रिकॉर्डिंग अवेलेबल अछि मौसमी टिके स्वर पढ़ला गल पढ़ाई जे लागु जे लिहानी तुमको कि हानि बिना लागवाते हेलो शुभम ऑब्जेक्ट विषय पढ़ाई देला कि नै पढ़ाई दे हेलो शुभम सर ऑब्जेक्ट विषय में कहि दिली ऑब्जेक्ट और डेफिनेशन कहि दिली ऑब्जेक्ट विषय बुझे दिली कि ना बुझे दिली ई डेफिनेशन ता कहि दिली कि ना कहि दे एबे एबे ए क्लास रे कहले आगुन ना कहि दे ना नहीं कहते आर यू श्योर सब सब्जेक्ट और वर्ब विषय कहैतला ऑब्जेक्ट विषय नहीं कहते आर यू 100% श्योर यस सर टेल मी ओके ओके बेला अलगा केन क्लास रे कहि देती जदी सभे ना कहै बोल चबेला अलगा केन क्लास में बहुत क्लास में सी अलगा केन कहि देती
ओके बट ठीक अछि देखमा ओके यहाँ नहीं बुझी पारलो ऑब्जेक्ट कहा कहा जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं चिन्ही पारबो कि ना पारो एबे ऑब्जेक्ट चिन्ही पारबो कि ना पारो मते कह बर्ड्स फ्लाई ओके ममता इन ऑब्जेक्ट की है बर्ड्स फ्लाई which word is the object over here in this sentence please tell me hello Mamta No you object. guys Bird is object. okay according to Shubham bird is the object see गोटे सेंटेंस रे गोटे जिनिस अफेक्टेड रहउतला बेले आ गोटे जिनिस काना कहथिसे से काम के पढुथिसी से तबे डोर कहा जासी हाउ कैन यू कॉल द डोर एन सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट हाउ कैन यू कॉल द डोर एन ऑब्जेक्ट गोटे डोर के तुमे केना करी गोटे डोर के केना करी तुमे कहि पारबो ऑब्जेक्ट है बोल करी इनु तो बर्ड्स फ्लाई करू बर्ड्स उड़ुजी ओके पक्षी माने उड़ुचंती माने गोटे काम करूचन गोटे सेंटेंस रे मु तो सब्जेक्ट डेफिनेशन कहि दिली गोटे सेंटेंस रे जार विषय रे किछि कहा जेतिसी ओके किंबा गोटे सेंटेंस जे किछि काम करूतिसी से ही दिस इज ए सेंटेंस रो का सब्जेक्ट जहार विषय रे कहा जेतिसी और जे किछि काम करूतिसी ओके आई वर्क इन ए मल्टीनेशनल कंपनी हियर के वर्क करसी विथ मल्टीनेशनल के काम कर तार काम के कहू मोर काम के कहू जे मुई अभी मुई सब्जेक्ट है बुझि पारलो तो यू आर लुकिंग हैंडसम जेतला मैं कहू जे तो कार विषय रे कहू जे तमर विषय रे कहू जे तमे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट भार फार तुम क्लियर ना हवा तल के आखि बेल सुनो ई क्लास हम डेमो डेमो डे 1 अच्छे डे 2 डेमो अच्छे तापर सब्जेक्ट भार अच्छे फिर सब्जेक्ट भार अच्छे फिर सब्जेक्ट भार अच्छे सब्जेक्ट भार तीनटा क्लास निया जाइछे से तीन वीडियो और थरे थरे देखो सब रिवाइज करो ओके सी तो हम पढुतला गाना पैसिव वॉइस पढुतला ओके हेलो ममता कैन यू हियर मी आई हैव तुमर लाइक गोटे काम ते अच्छे चेयर बाइला कि तुम मते इन्फॉर्म करबो ममता प्लीज ओके चेयर बाइला कि मते इन्फॉर्म करबो ओके सुन लो के हाँ सर okay thank you passive voice three cases see for three cases okay to denote to express to describe these three cases we use the structure of passive voice instead of okay general structure by active voice रो जगह रे हम passive voice केते बेला यूज करबा जदी if the subject is unknown or hidden if object carries more importance than the subject and third cases kana if we want to stress the verb of a sentence okay good sentence ro verb के हम यदि stress देबा ले चाहू छु okay if we want to stress the verb of a sentence then we have to use passive structure in that sentence okay जेते बेला कना थिसी गुटे sentence रो object जेते हमकु कना थिसी गुटे sentence रो object रो importance देखाबार थिसी भाव रूप के स्ट्रेस करबार थिसी से सेंटेंस ता डिमांड करसी दैट सेंटेंस डिमांड्स टू बी एक्सप्रेस इन पैसिव स्ट्रक्चर ओके पैसिव स्ट्रक्चर से दैट एक्सप्रेस वाला डिमांड करसी आई विल गिव यू सेवरल एग्जांपल्स देयर आफ्टर यू विल अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट ओके गोटे प्रैक्टिकल कथाटे भाबो गोटे प्रैक्टिकल कथा गोटे किछि गोटे भाबो गोटे बहुत बढ़िया एग्जांपल दे देसी मैं सेटा सुनना पड़वा रे I will file an FIR against you. Okay. मुझे क्या कहली आमर इनु काली मंदिर बोली गोटे छक टे अछि मुझे काली मंदिर छक रे ठिया हेतिनी ओके सेनु काना हला मार दुई जण भितर हमर काना मार होला मुई अछि आ जणी अछि सेता भितर मार होला ओके तो मुई सेता के कहली I will file an FIR against you. मुझे सेता के कहली I will file an FIR against you. मु पैसिव वॉइस के तुमको फील करावा ले चाहू का करी हम पैसिव वॉइस के तमाने यूज करसु एक्टिव वॉइस जगह रे ओके मुझे सेता के कहली इडा मुई अछि इडा से अछि मान लोडी तुनु दुहे मान लोडी सल्ला परे कहली ओके I will file an FIR against you. तो से जगह रे कहार इंपोर्टेंस रहला मोर इंपोर्टेंस रहला जे मुई तार अगेंस्ट से FIR फाइल करमी ओके I will file an FIR against you okay I will file an FIR against you more importance होला तो से जगह से भाभी परवा ई FIR ई मोर नानु को बना FIR करवा एतकी दम छै तार बरवा बुझि पर जगी से पहला भाबा गाना ई मोर नानु FIR करवा से मोर विषय रे पहला भाबा बुझि पर जो जेते हम ताहा कहमी I will file an FIR against you because
This sentence is showing or this sentence is expressing the importance of I rather than the importance of FIR or anything else in this sentence. Okay, इस sentence से जितने जिनिस यूज है सबुतर जहाँ importance के कैरीज करछे मुझे जेतले जनरल स्ट्रक्चर बा एक्टिव वॉइस रे लिखुजे मुझे जेतले एक्टिव वॉइस रे लिखुजे जहाँ importance के कैरीज करछे आई तो मुझे जेतले कहली मुई उठे FIR ते तोर नानु फाइल कर देमी बोली तो से कहवा ई क्रेडिट लोगा ओके ई किया ई काना बोला मते मोर विषय ई फिर FIR फाइल करवा ये हा हा कर देवा हंसी देवा बुझी पर जागिन तो से जगह रे कहार इंपोर्टेंस रहला आई रो इंपोर्टेंस जदी सेंटेंस के मुई पैसिव वॉइस रे कहली इस सेंटेंस की जदी मुई पैसिव वॉइस रे कहली जे काना एन FIR will be filed against you जेते बेले मुई इस सेम सेंटेंस के इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस रे लिखि दिली से सेम सेंटेंस के जेते बेले मुई काना कहि देली पैसिव स्ट्रक्चर रे कहि देली इनु इंपोर्टेंस आसी गला काना FIR रो बुझी पालो तो सेते बेले मुई जेते कहली जे मुई तोर नानो FIR फाइल कर देमी बोली FIR फाइल कर देमी से भाबा ई फिर FIR फाइल करवा ओके किंतु मुझे तो ई सेंटेंस कहमी एन FIR विल बी फाइल्ड अगेंस्ट यू से डरी जीवा ओके से भाबा काना FIR फाइल करवा केंदा टाइप FIR फाइल करवा केन केस रे FIR फाइल करवा काना हला 365 रे करवा कि 372 रे करवा कि 292 रे करवा सेटा से पहला भाबा बुझि पारलो बिकॉज़ इनो इंपोर्टेंस कहार शो कली मुई ऑब्जेक्ट रो इंपोर्टेंस शो कली बुझि पारलो इनो एन FIR विल बी फाइल्ड अगेंस्ट यू बुझि पारलो तो इनो कहार इंपोर्टेंस मुई शो कली FIR रो इंपोर्टेंस शो कली बुझि पारलो तो ऑन द थीसी बुझि पारलो गोटे सेंटेंस रे हमकु सब्जेक्ट रो इंपोर्टेंस शो करबार छै राइट दैट सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट रो इंपोर्टेंस शो करबार छै राइट दैट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस बुझि पारलो से सेंटेंस के हमें पैसिव वॉइस रे लिखवा तो दिस इज इस इतर ये एग्जांपल में इथले तुमको देली ओके बिकॉज़ तुम फील करि पारबो जे केन केसेस रे पैसिव वॉइस के हम यूज करवा आ केतरा एग्जांपल दउ छै मु पेपर आजिरा पढु दिली सनु लिखा दिला okay the girl was kidnapped raped anything else okay लिखा दिला the girl was kidnapped इनो देखो इनो ऑब्जेक्ट ही है the girl okay इनो ऑब्जेक्ट ही है the girl इस सेंटेंस से टुकल के किडनैप करछे do we know that person हमें सब्जेक्ट विषय किसी आइडिया अच्छे के ना ना तो देखो सब्जेक्ट विषय आइडिया न थी हेतिन लगी से सेंटेंस के लिखली मुई पैसिव वॉइस मैं तुमको कहितली पास्ट यूज रे जे जदी हमें गाना सब्जेक्ट हिडन अछि गोटे सेंटेंस रे बा सब्जेक्ट अननोन अछि तो से सेंटेंस के हमें लिखि पारमा पैसिव वॉइस रे द गर्ल वाज किडनैप्ड बुझि पाले द गर्ल वाज किडनैप्ड इनो गर्ल रो इंपोर्टेंस बढ़ी गेला जैसे टुकेल रो इंपोर्टेंस बढ़ी गेला बुझि पालो तो के किडनैप करछि ओके तार में जो इंपोर्टेंट है जैसे टुकेलडा इंपोर्टेंट तार में जो इंपोर्टेंट है केन टुकेलडा माने से टुकेलडा किडनैप हेनी छी बुझि पारलो तो आ काना थिला इनो दुईटा जिनिस गाल रो इंपोर्टेंस के भी शो करवार थिला प्लस काना सब्जेक्ट की है जे हमें ना जाने वी डोंट नो द सब्जेक्ट इफ वी डोंट नो द सब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट ना जानी राइट दैट सेंटेंस इन पैसिव वॉइस इफ यू वांट टू एक्सप्रेस द इफ यू वांट टू द माने शो द इंपोर्टेंस or give emphasis हमको यदि emphasis देवार है if you want to give emphasis to the object of a sentence then write down that sentence in passive voice से sentence के passive voice नो लिखो ओके ठीक अछि तो हेति लगे हम passive voice यूज करसु बुझि पारलो passive voice का यूज करसु इटा मोस्ट इंपोर्टेंट है सबले तुमको पढ़े देबे जेते बेला एक्टिव पैसिव पढ़ौ जन काना केंदा गुरी एक्टिव नु पैसिव के कन्वर्ट करसु सेटा पढ़े दउ छ छाड़ी दउ जन सरी गला बट छुआ माने जानि ना परबा जे केते बेला से पैसिव वॉइस के यूज करबे मु सेटा तो बते देली जे पैसिव वॉइस के केते बेला यूज करबो सेकंड कथा इटा हला जे तार मीनिंग ता काना शो करसी बुझ पालो मैं से मीनिंग भी कहबी आई राइट ए लेटर ओके ई सेम सेंटेंस इटा एक्टिव रे छे इटा मैं पैसिव रे लिखली काना हे जिवा ए लेटर इज रिटन बाय इटा तो पहला आई राइट ए लेटर मु लेटर गुटे लिखे बुझले मु लेटर लिखे ओके मु गोटे लेटर लिखे इतार मतलब बट इतार मीनिंग का हैला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस बुझलो दिस सेंटेंस रो मीनिंग तो हमें जानि छु आई राइट ए लेटर बट इतार मीनिंग का हैला ए लेटर इज रिटन बाय मी ओके इतार मीनिंग का हैला से मीनिंग तो तुमको कहना बता बट वी विल गो थ्रू ऑल दैट थिंग्स तार संगे संगे मु आउ केतरा माने इनु देखो पैसिव हानि ना सरे I will take 3 class to finish this
3 क्लास में भी जह लागि पारे पैसिव बिकॉज देखो पैसिव रो नॉर्मल स्ट्रक्चर केतरा अछि 8टा स्ट्रक्चर अछि जेतेले तुमे कोर्ट एग्जाम दे जुछो कि केनसी एग्जाम दे जुछो कि तुमे प्लस 2 एग्जाम दियो ओके केनसी भी तुमे एग्जाम दियो 8टा स्ट्रक्चर नु आसी जिबा बुझि पार जइनी तुम प्लस 3 रे भी जेन थीसी इंग्लिश गुटे सेटा थीसी काना थीसी ऑप्शनल थीसी से इंग्लिश ऑप्शनल रे भी 8टा स्ट्रक्चर आसी जिबा के नहीं जोगे मौसमी कुमार और शुभम इंग्लिश ऑप्शनल के नहीं जोगे हाँ सर मैं नहीं छे हाँ तो तुम्हें जेन जो ये 8टा स्ट्रक्चर नु आसी जिबा बुझि पारलो कि किंतु तुमे बैंक एग्जाम दे जुछो कि केनसी एसएससी एसएससी एग्जाम दे जुछो कि तुमे पीजी रो एंट्रेंस दोजो केनसी पीजी रो एंट्रेंस दोजो सेनु जदी इंग्लिश की बीईडी ओके बीईडी लेट्स कंसीडर बीईडी आल्सो ओके बीईडी एंट्रेंस दोजो ये 8टा नॉर्मल स्ट्रक्चर ना आसी सभे जिंतिसन एवरीबॉडी नोज दिस स्ट्रक्चर दिस 8 स्ट्रक्चर सभे जिंतिसन बट ये 8 स्ट्रक्चर बाहर जन रहिसी आउ केतेरा कम से कम 25 टा स्ट्रक्चर थिबा से 25 टा स्ट्रक्चर नु क्वेश्चन आसी मिसलेनियस स्ट्रक्चर कहै आमे से मिसलेनियस स्ट्रक्चर से मिसलेनियस स्ट्रक्चर नु आसी बुझि पार जगे तो से मिसलेनियस स्ट्रक्चर भी आमे पढमा खाली 8टा स्ट्रक्चर ना पढू तो मुई नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्सन में विषय पढ़वा लगी जो कार कन्वर्सन पढ़वा एक्टिव टू पैसिव ओके ठीक अछि एक्टिव टू पैसिव कन्वर्सन पढ़वा जेते बेले भी हमें कहा सर सर ये सर आज संध्या रे भी क्लास होबा ना ना संध्या रे न होय आजिका दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्लास आज्ञा। राइट नाउ तुम्हें हला आज्ञा। जदी तुमर यानी किछि काम हां तुमर किछि काम अछि यानी बेले तुमे से रिकॉर्डिंग ता देखि पारबो पछे ओके शुभम आज्ञा आज्ञा 3:30 रे अछि सर 3:30 आगे देखु जे ओके यस यस ठीक अछि तो हमें यानी पढ़मा कन्वर्सन चेंज कैटेगरी एक्टिव टू पैसिव कैटेगरी चेंज करमा हमें सेरा पढ़मा गोटे सेंटेंस से एक्टिव वॉइस रे दिछे से सेंटेंस रो पैसिव स्ट्रक्चर काना हवा बुझि पारलो तो से जिनिस हमें देखमा तो जते जते एला काना होय जे मु एक्टिव टू पैसिव चेंज करू जे सेंटेंस मन को गोटे a sentence is given in active structure and I am going to change that sentence into passive structure से केस रे काना हिजबा सब्जेक्ट ता ऑब्जेक्ट रो जगह नहीं जिबा subject will take the place of object and object will take the place of subject बुझि पारलो दुहे दुहे लोकर जगह काना कर देबे इंटर चेंज कर देबे पहला रोलीटा changing of active voice into passive voice और कन्वर्सन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस रो रूल नंबर 1 हला इटा जे जेते जेते बेले मु एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस रे कन्वर्ट करमी सेते सेते बेले से एक्टिव वॉइस रो सब्जेक्ट ता ऑब्जेक्ट रो जगह के नहीं जीवा ऑब्जेक्ट रो जगह नहीं जीवा ऑब्जेक्ट ता सब्जेक्ट रो जगह नहीं जीवा जनता हम गुटे देतिनी आई राइट ए लेटर ओके आई राइट ए लेटर इटा केनथि होचे एक्टिव वॉइस रे होचे इटर पैसिव काना हवा ए लेटर इज written by मी देखो काना हला ए लेटर काना थिला ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस रे सब्जेक्ट रो जगह नहीं जिछि कि जेते बेले एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में लिखु जे सब्जेक्ट काना हिबा ऑब्जेक्ट रो जगह नहीं जिबा और ऑब्जेक्ट काना हिबा सब्जेक्ट रो जगह नहीं जिबा जेते जेते बेले मु एक्टिव वॉइस के पैसिव रे लिखु जे ऑब्जेक्ट काना करबा सब्जेक्ट जेनु थिला सेम के पले आसबा और सब्जेक्ट काना करबा पछाड़ के पले जिबा आई रो काना हिजबा आई दा नॉमिनेटिव केस रे होचे पछके बोले ऑब्जेक्टिव केस हिजबा मी हिजबा सेटा मैं बतै जा तुमको ओके तो एटा बुझी पाला पहला रूल नंबर 1 जे जेते जेते बोले हम एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस रे कन्वर्ट करबा काना हवा एक्टिव सब्जेक्ट ता ऑब्जेक्ट रो जगह नहीं जिबा ऑब्जेक्ट ता सब्जेक्ट रो जगह नहीं जिबा रूल नंबर 2 ओके देखो सब्जेक्ट जे ऑब्जेक्ट रो जगह नहीं जिबा कहली जदि सब्जेक्ट आई थिबा ओके सब्जेक्ट सॉरी नो मैं लिखु जे ओके सब्जेक्ट जन आई थिबा पछी वाला काना हिजबा मी हिजबा वी थिले अस हिजबा जेते बेले हम एक्टिव टू पैसिव चेंज कर जे सब्जेक्ट पछके दिबा पहले में सब्जेक्ट पछके दिबा तो पछके जी काना हिजबा मी हिजबा जदि आई थिबा सब्जेक्ट मी हिजबा वी थिबा सब्जेक्ट अस हिजबा यू थिबा सब्जेक्ट यू थिबा बुझिबाला तो राहुल थिबा तो सही ना थिबा राहुल किछि चेंज न होय सब्जेक्ट जदि राहुल थिबा ऑब्जेक्ट जदि राहुल हिजबा बुझि पारलो तो आई थिले मी हिजबा वी थिले अस हिजबा यू थिले यू हिजबा राहुल थिले राहुल हिजबा दे थिले काना हिजबा देन हिजबा ओके हु थिले
whom ही जीवा तो ई प्रकार चेंजेस माने आसबा ओके ही थिले यस इरा गोटे छाडी दो हां इनु लिखि दो जे ही थिले काना ही जीवा ही और सी थिले काना ही जीवा हिम और हार ही जीवा ओके हिम और काना ही जीवा हार ही जीवा ओके तो जते जते सब्जेक्ट माने पछके जीवे ऑब्जेक्ट से माने चेंज ही जीवे आई थिले काना ही जीवा मी ही जीवा वी थिले वी रो ऑब्जेक्टिव केस अस यू थिले यूर ऑब्जेक्टिव केस यू राहुल थिले राहुल दे थिले देम होम थिले हु ही सी थिले हिम हार ही जीवा ओके जते जते सब्जेक्ट पछके जीवा आई होचे सब्जेक्ट मी ही जीवा वी होचे सब्जेक्ट अस ही जीवा ओके इरा मेटोजेन इरा लिखि देबो ये लिखबो सियो ये रूल माने नोट बनाबो रेक यहाँ नहीं कि है नोट ना लिखो ओके ममता दिस इज योर फर्स्ट क्लास सो तुम्हें नोट ना लिखो हम नोट टा काना थिसी रिकॉर्डिंग ए क्लास में सार्वी की रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जीवा ओके आर यू देयर और नॉट यस यू आर देयर ओके तो यस ओके तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जीवा बुझी पारलो तुम्हें रिकॉर्डिंग देखि कर नोट पेपर बने पारबो नो प्रॉब्लम विथ दैट ठीक अछि रूल नंबर 3 पैसिव वॉइस रे इन पैसिव वॉइस सब बेले भाग रो थर्ड फॉर्म हिसाबा मु तुमको v1 v2 v3 v4 v5 बते दिली v3 फॉर्म बा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ता सब बेले यूज होसी पैसिव वॉइस रे पैसिव स्ट्रक्चर ऑलवेज टेक्स और ऑलवेज कैरीज ऑलवेज कंटेन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड इन इट्स स्ट्रक्चर ता स्ट्रक्चर रे सब बेले भाग रो थर्ड फॉर्म थिसी तो दिस इज योर रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 ओके तो जते जते बेले हम गाना करछु एक्टिव टू पैसिव कन्वर्सन करूछु कन्वर्ट करूछु चेंज करूछु सेते सेते वी आर बाउंड टू फॉलो दिस थ्री रूल्स दिस थ्री स्टेप्स यू कैन आल्सो कॉल दिस एज स्टेप ओके इस तीनटा स्टेप के हम फॉलो करछो जदी बुझिना पारलो यहां नि बुझि जीवो डोंट वरी ओके जदी बुझिना पारि गले यहां नि बुझिबो डोंट वरी चलो यहां नि पढवा हमें चेंज ऑफ एक्टिव वॉइस टू into passive voice ओके हमें पहला नमा गाना टेंस रो जन 12 टा स्ट्रक्चर है से आ गुडी भी सुनी कहि दो देखो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव future progressive ये चट्टा स्टैंड्स फॉर पैसिव वॉइस नेट है ओके प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव future progressive and future perfect progressive these tenses do not have passive structures passive structure माने ना नयता कर passive structure जदि गुडी जिनिस प्रेजेंट तोर एग्जाम रे देति दिबा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रे पैसिव रे लिखो बोल दिबा सेनो तुम लिखि देबो impossible can't determine no not possible okay no passive structure available से जगह रे तुम लिखि देबो change of active voice into passive voice okay in tense तो हम पहला नमा काना सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला पढू प्रेजेंट टेंस रे पहला गाना सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट रो एक्टिव स्ट्रक्चर काना है सब्जेक्ट प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट देखो यो गोटे कथा हम कहि दउ जे ओके बर्ड्स फ्लाई ओके बर्ड्स फ्लाई इन द सब्जेक्ट है इन द वर्ब है इस सेंटेंस रे ऑब्जेक्ट नेनो तो जेन सेंटेंस मान को ऑब्जेक्ट नै था से सेंटेंस मान को पैसिव लिखा जाय ना पारे बुझि पारलो तो काहाकार पैसिव लिखा जाय ना पारे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव आउ से सेंटेंस मान को जेन सेंटेंस मान को कि ऑब्जेक्ट नै थे दिस सेंटेंस डजंट कैरी
ए ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट ई सेंटेंस गुटे ऑब्जेक्ट कैरी ना करी ऑब्जेक्ट ना रखी ओके तो ये सेंटेंस रो पैसिव स्ट्रक्चर लिखा जाई ना पारे ओके पैसिव स्ट्रक्चर इटा खाली एक्टिव स्ट्रक्चर लिखा जाई पारबा तो जान लो इटा मैं तुमको फिर बतामी होगे सीधा लास्ट के बतासी sentences not having an object okay also do not have their passive structure जिन सेंटेंस मानकर ऑब्जेक्ट न थे से सेंटेंस मानकर पैसिव स्ट्रक्चर भी न थे ओके सिंपल प्रेजेंट टेंस काना एक्टिव सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव स्ट्रक्चर का काना सब्जेक्ट प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट ओके v1 और v5 रहसी ओके v5 v1 और v5 रहसी इधर पैसिव स्ट्रक्चर काना है जैसी ऑब्जेक्ट प्लस each m r प्लस v3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट ओके इनमें खाली नु v नहीं लिखा ओके तो मैं जिन v1 और v5 वैसे जानी ओके v5 पहले का ना प्लूरल सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंगुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब ओके तो देखो आई बहुत से बुझो राइट ए लेटर केन टेंस में अछि इदा सिंपल प्रेजेंट टेंस में अछि केन स्ट्रक्चर में अछि एक्टिव स्ट्रक्चर में अछि एक्टिव स्ट्रक्चर मींस द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ simple present tense I have already told you three type of structure general structure negative structure question structure or interrogative structure okay so active structure means the general structure of present simple present tense or present simple tense I write a letter केन टेंस रे अछि simple present tense रे अछि इतर मते काना बाहर कराबार अछि passive I have to write the passive structure ई sentence के मते I write a letter okay ई sentence के मते लिखबार के दिन अछि passive voice रे लिखबार अछि write down this sentence in passive voice ई sentence के काना करबार अछि मते passive voice रे लिखबार अछि केना को लिखमी पहला इनु सब्जेक्ट किया मु देखमी verb किया देखमी आ ऑब्जेक्ट किया देखमी सब्जेक्ट पे गेली verb पे गेली ऑब्जेक्ट पे गेली तो एटा केन टेंस रे अछि सिंपल प्रेजेंट टेंस रे अछि सिंपल प्रेजेंट टेंस और पैसिव स्ट्रक्चर रे काना अछि ऑब्जेक्ट आके पले अछि ऑब्जेक्ट क्या क्या आनी आसु ए लेटर आके जेतु पलेला रे बढ़िबा ए लेटर ताबरे काना अछि इज किंबा एम किंबा आर लागसी तो लेटर ए लेटर काना है सिंगुलर संगे सब काना लागसी इज लागसी ए लेटर इज आई हेतिता बेला एम लागि दिता जदि अलगा काना हेतिता प्लुरल हेतिता लेटर्स हेतिता माने को बेला आर लागि दिता किंतु इनु गुटे लेटर अछि ए लेटर हेतिले काना लागला इज तो ऑब्जेक्ट पहला लागसी लगे देला इच एम आर इच किंबा एम किंबा आर लागसी लगे देला ओके तापर काना v3 एसी v केनटा इनु राइट वर्ब तो इधर v3 फॉर्म काना रिटन लिखि देली तापर काना बाय लागसी बाय तापर काना सब्जेक्ट आई बोले आला मैं काना कहितली जेते बे सब्जेक्ट के पोस्ट के नेबो अंता न लिखबो आई के काना लिखसु मी a letter is written by me a letter is written by me so this is the passive structure or so this is the passive of I write a letter passive of this sentence a letter is written by me मते एक कह केंदा करी सिंपल प्रेजेंट टेंस रो एक्टिव नु पैसिव स्ट्रक्चर के चेंज करसु बुझी पारलो कि ना पारलो मते एक कह मैं तो अलगा हिसाब बुझामी कुमार बुझी पारलो बुझिला सर हां सर बुझिला सर मौसमी बुझियला सर शुभम आरु दिया शुभम नैनो भाई लागुଛି ममता बुझी पारलो हाँ सर ठीक अछि कहबो यानी गोटे सेंटेंस से दोछ ओके ठीक अछि इरा नोट बनाबो पहले ओके मैं गोटे सेंटेंस से दोछ दे प्ले फुटबॉल हम दा दिस तुम्हें कह इतार काना हवा हला एक्टिव पैसिव ओके पैसिव कह इतार काना हवा दे प्ले फुटबॉल केन टेंस नो छे पहला मते कहैटा दे प्ले फुटबॉल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नो छे नीटा हेलो हेलो सर प्रेजेंट हाँ प्रोग्रेसिव सर नो छे ना इटा दे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नीटा छे हाँ सिंपल प्रेजेंट नो छे
दे प्ले फुटबॉल हला सिंपल प्रेजेंट न अछि ओके तो इधर देखो इधर पैसिव काढवार अछि मते केना भी काढमी इधर पैसिव काढवार अछि कुमार तुम्हें कहि पारबो इधर पैसिव केना बनावा सर फुटबॉल played by them. देखो नहीं ठीक है गड़बड़ ही गला देखो The पहला football is आइडेंटिफाई played करना by them. यस वेरी गुड ओके पहला हमें आइडेंटिफाई करना सब्जेक्ट वर्ब भल से सुनो यहाँ नहीं होगा पूरा भल से सुनो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम जानि पड़ा अगर सिंपल प्रेजेंट अच्छे सिंपल प्रेजेंट पैसिव स्ट्रक्चर देखमा काना पहला ऑब्जेक्ट क्या नहीं आसो ऑब्जेक्ट फुटबॉल है आकिया नहीं आसनी फुटबॉल ऑब्जेक्ट आकिया नहीं आसली ओके सरला इधर का तापर काना क्वेश्चन इज लागसी कि एम लागसी कि आर लागसी फुटबॉल सिंगुलर है तो काना लगवा एम तो लगी ना पारे आर तो लगी ना पारे लागवा काना इज फुटबॉल इज तापर काना v3 इटा भी भार किए इनु प्ले है इधर v3 फॉर्म काना है प्लेड है ओके प्ले तो इटा भी लगे देनी इटा भी लगे तापर बाय लागसी बाय लगे देनी तापर सब्जेक्ट लागसी दे के आकिया नियम आंदा लिखि परबे के दे जे देला पछके पले ऐसे काना लिखसु लिखि दे दिली मुई देम लिखसु मुई लिखि दे दिली दुहाड़ी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे देम आई me you we us okay so football is played by them कुमार बुझी पालो फुटबॉल इज प्लेड बाय them हला तुमे सब ठीक कहितलो इज ता छाडी देदिलो कुमार ओके ममता बुझी पालो रे हाँ सर ओके ठीक अछि केते कहला ओके ठीक अछि तो इधर आउटे हानि मुई पचरामी हला कहबो he works very fast मौसमी दिस इज इनु कह इधर पैसिव एक्टिव वॉइस रे लिखि जाए इधर पैसिव स्ट्रक्चर मते कह he works very fast केन टेंस रे होचे पहला कह प्रेजेंट परफेक्ट रे होचे ना Simple. नहीं सर Simple simple ଅଛି? present. okay so it is in simple present tense so इधर passive structure मते कहि पारबो के can you tell me the passive structure of this sentence or can you tell me the passive of this sentence कुमार कहि पारबो तमे he works very fast नहीं सर मुझे कंफ्यूज है सर okay ममता तुम्हें कहि पारबो के नहीं सर हेलो ओके सी मौसमी ई सेंटेंस ऑब्जेक्ट मते केनटा देखबो हैं नहीं no sir object. ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन ऑब्जेक्ट न थिले तुमको मैं कहि दी जब कहितली तो ऑब्जेक्ट न थिले तार पैसिव स्ट्रक्चर भी न थे नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव ओके नो ऑब्जेक्ट सो रखी दो नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव कहितली तो ऑब्जेक्ट न थिले पैसिव स्ट्रक्चर भी न थे तो इधर पैसिव स्ट्रक्चर हमें लिखि न पारे ओके वी कैन नॉट राइट द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस एग्जाम में पढ़ी गले पैसिव स्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल कैन डिटरमाइन नॉट पॉसिबल जेनटा थिबा नॉन नॉन भी उठे दिथिबा बेले लास्ट ऑप्शन रे नॉन लिखि देबो आ उठे ओके द बॉय makes cakes the boy makes cakes एक्टिव स्ट्रक्चर रे छै हमको काना करबार छै इधर पैसिव लिखबार छै पहला हम आइडेंटिफाई कर देबी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ओके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैं आइडेंटिफाई कर देबी पहला गाना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इरा सिंपल प्रेजेंट रे छै देखु जे पूरा दो सिंपल प्रेजेंट रे छै सिंपल प्रेजेंट थिले तार पैसिव वॉइस केना लिखना ऑब्जेक्ट आके नहीं आसना ऑब्जेक्ट आके नहीं आसना केक्स ओके केक से एम लगवा दे आई अच्छे आई रे खाली एम लागसी इस लगी परवा न लगी पर काहे इधर प्लुरल अछि गोटे केक थिता रे इस लगी थिता बट केक्स अछि तो इच भी लगी न पर एम भी लगी न पर तो लागबा काना आर ऑब्जेक्ट आनियली आके लिखि देली ऑब्जेक्ट अछि आके आनियली लिखि देली तापरे काना लागसी मु देखिमी
इच ना लगी पर एम ना लगी पर लगवा कना आर तापर कना लागसे v3 तो इन v की है वर्ब की है इन मेक अछि तार v3 फॉर्म कना मेक ओके तापर कना बाय तापर सब्जेक्ट इन द बॉयटा द बॉय रहला केक्स आर मेड बाय द बॉय ओके द बॉय मेक्स केक्स आर मेड बाय द बॉय ओके केक्स आर मेड बाय द बॉय ओके द बॉय बुझी पारलो एरपर हबारे लागु छे मैं तुम एग्जाम टे कराम के है से हिसाब से ध्यान दियो कुमार तुम्हार क्लियर है पूरा मत कह हाँ सर क्लियर सर अभी कि टिके टिके डाउट अच्छे देल नहीं तो यहाँ गोटे कही दियो है यू किसी गोटे सेंटेंस टे हाँ बढ़िया सेंटेंस से बोलला जिते बेले कैंसी जिनिस सोर ना पड़वा माँ के सोर कर सब जिनिस सोर पड़ जाए माय मदर कुक्स राइस माय मदर इटा बहुत लोग कन्फ्यूजन बढ़िया दीजिए ओके ठीक है माय मदर कुक्स राइस ओके इटा एक्टिव रे अच्छे गोटे जिन लिखी दे स्वीट राइस लिखी दे खाली राइस लिखे चलवा नो प्रॉब्लम ओके आम यहाँ मीनिंग वाइज नहीं देख देख ओके एक्टिव रे अच्छे इटा पैसिव मत इधर कह पहला आइडेंटिफाई कर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के आके नहीं आसमा राइस राइस संगे सब बोले खाबार पीबार जिनिस मन संगे सब बोले काना लगवा इच लगवा ओके राइस इज माय फेवरेट फूड ओके आर ना लगाबो राइस के प्लुरल बोलते सन प्लुरल बोलवा ना ओके अनकाउंटेबल नाउन ने सिंगुलर वर्ब नबा कहि सारी जे मुई अनकाउंटेबल नाउन टेक सिंगुलर वर्ब ओके मुई तमर सेति कहि दिनु काना पढ़ा लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रे ओके ना तो नाउन पढ़ाला बेले कहनी ओके राइस इज ऑब्जेक्ट आके नहीं असली लिखिदेली इज v3 फॉर्म कौन अच्छे कुक अच्छे पहले कौन है कुक्ड राइस इज कुक्ड बाय माय मदर टा माय मदर थिला ओके राइस इज कुक्ड बाय माय मदर दिस इज द पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस माय मदर कुक्स राइस रो पैसिव कौन है राइस इज कुक्ड बाय माय मदर बुझी पारि दिबो सब ओके तो एटा थिला तुमर सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां ने स्ट्रक्चर बतो जेकर मीनिंग बतामी ओके इतार मीनिंग केते केते दूर तक जी पारवा जे मैं तुमको बतामी डोंट वरी अबाउट द मीनिंग पहला कन्वर्सन सीखी जाओ तो इटा थिला तुमर सिंपल प्रेजेंट टेंस कि केना को तुम कन्वर्ट करबो एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस आ गोटे जिनिस हम देखि दो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ओके ओके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव करिया प्रेजेंट present progressive if a sentence is in present progressive tense then how to convert that sentence into passive voice we are going to look that we are going to discuss that our से जिनिस डिस्कस करबा लई जाउ छु जे गुटे सेंटेंस टे जदी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस नो छे if a sentence is in present progressive tense then how to convert that sentence into passive voice रे केना गली तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रो एक्टिव स्ट्रक्चर का है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रो एक्टिव स्ट्रक्चर subject plus is am are plus v4 वाला जाना v plus ing वाला जाना ओके s plus is am are plus v4 plus object तो इधर पैसिव स्ट्रक्चर का है जीवा ऑब्जेक्ट क्या नहीं असमा इच am are जिनका लगा ऑब्जेक्ट के देखिए लगाना सब्जेक्ट के देखिए ना लगा ऑब्जेक्ट के लगे देखिए कोई इच लगवा कि m लगवा कि r लगवा लगे देमा प्लस आ गुटे वर्ड के जोड़ी देमा being प्लस तुम जान जे पैसिव रे सब बेला काना ऐसी v3 फॉर्म ही यूज ऐसी v3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट जन पूरा ऑब्जेक्टिव केस रे सब्जेक्ट के लिखमा सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ present progressive tense in active voice and in passive voice I am writing a letter. I am writing a letter. This sentence is in active voice. This sentence क्या थी नोचे? Active voice रे अच्छे. इधर passive structure काना हवा. Okay. पहला हम identify करेंगे subject, verb और object.
ओके पहला हम आइडेंटिफाई करबा जाना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ओके कहां कहि जे तामे जानला देखो आई एम राइटिंग ए लेटर मु जानि पकाली जे ई सेंटेंस टा के दिन होचे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होचे केना कर जानली ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होचे बिकॉज़ ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस रो स्ट्रक्चर रे लिखा हिचे ओके ई स्ट्रक्चर रे लिखा हिचे बेले तार पैसिव ई स्ट्रक्चर ही होगा if a sentence is written in this structure then the passive of that sentence will definitely be in this structure okay I am writing a letter का बोल जे जब भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे गुटे सेंटेंस थिबा तार पैसिव केना करि करबो ई स्ट्रक्चर पके देबो ऑब्जेक्ट अक्यानिया से बोल जे ओके ऑब्जेक्ट अक्यानिया से ए लेटर ताबरे गाना ईच एमआर केंदा लगवा गुटे लेटर छे बोले ईच लगवा ऑब्वियसली ईच सला इतर काम भी बिल लगे दे बोल जे यस लगे दे ताबरे भित्री राइटिंग तो भित्री काना हवा रिटर्न हवा ताबरे भित्री भी सल्ला बिल भी सल्ला बाय सब्जेक्ट पछी वाला आई रहसी के आईटा काना से पछी वाला आईटा पछी वाला मी ही यस ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी बुझी पाल्लो का कह ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी बुझी पाल्लो का कह कुमार हाँ सर ममता बुझी पाल्लो हाँ सर ओके ठीक है ए लेटर आर यू अटेंडिंग द क्लास और नॉट के कागड़ा करू जो तुमे किछ ना करबा ओके ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी तो यहानी गुटे दउ जामी तमे कहबो ओके ठीक अछि हां दे आर playing football. This sentence is in active voice. Write down the passive voice of this sentence. Ramta, this question is for you. First of all, identify the subject, then verb, then object, and now tell me what is the passive of this sentence. This sentence of passive can have. They are playing football. पहला कहाँ को बात ऑब्जेक्ट क्या नहीं आसवार अछि फुटबॉल फुटबॉल गुटे ना फुटबॉल अछि एम थोड़े लगवा कहाँ ईच आख्या नहीं असली ईच लगे देली बिंग लगे देली ओके प्लेइंग रो भीतरी कहाँ प्लेट बाय दे पछे पले वाला कहाँ अछि फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम सो इजी बहुत इजी लागि जीवा तुमको कर करो ओके पहला धीरे पड़ा लागसी तापर इधर दौड़े देले भी छा माने बुझी जाता ओके बहुत इजी लागि जीवा करो बुझी पारु जो सबे इजी लागि लागी नहीं ओके तो मैं तुमको टास्क माने देमी बा होमवर्क माने देमी बा एग्जाम करामी मैं तमर सेति तुमको लिखवार अछि तो कांसेप्ट भल से बुझी जो पूरा भल से बुझी जइदिबो ओके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रो स्टॉक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रो पैसिव स्ट्रक्चर भल से बुझी जइदिबो ओके सो प्रेजेंट परफेक्ट रो गुटे प्रेजेंट परफेक्ट रो गुटे सारी दो का गुडी कह दो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रो नेनो ओके केते बायला मो 4 बजे गुटे ठाने क्लास थिला ठीक अछि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एक्टिव स्ट्रक्चर काना इता सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट इतार पैसिव स्ट्रक्चर काना सर प्रेजेंट परफेक्ट खाली ना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नहीं हां हां मैं तुमको हेडा कहमी बोल देली प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रो पैसिव स्ट्रक्चर नै न प्रेजेंट परफेक्ट तो बचे ओके प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रो अछि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव रो नै न तो एटा काहे जो ऑब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन प्लस v3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ओके तो सही एग्जांपल गोटे नहीं आई हैव रिटन ए लेटर एक्टिव वॉइस रे अछि सब्जेक्ट वर्ब एटा तो भीतरी रे अछि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस रे लिखवार अछि ऑब्जेक्ट या क्या नियस बोल छै आख्या नियस जे ऑब्जेक्ट ए लेटर तापरे काना बोल छै हैव लगवा कि हैज लगवा ए लेटर काना है पुटे जिनिस है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब नवा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब में सीधे प्लूरल वर्ब हो जिंजो आई रो केस रे किछि भी नहीं पासी आई मैं तुमको कहि देली ए लेटर एइरा काना हैज ओके बीन v3 काना अच्छे इटा ऑलरेडी v3 रे आगोन रिटन बाय आईटा काना यसी मी मते एकी को बुझी पालो
कुमार बुझी पारलो मौसुमी बुझी पारलो ममता बुझी पारलो हाँ हाँ सर सर हाँ बुझिएला ओके ହଁ ସାର୍ तो प्रेजेंट टेंस रो स्ट्रक्चर माने तुमे जानि पकालो न ओके मुई जेतेले एग्जाम करामी से एग्जाम रे तुमको एग्जांपल्स भी सेटा मिली जीवा से एग्जाम बुझी पारलो से एग्जाम जेंदा करासी सेटा एग्जांपल्स से सब बुझी पारलो कि एग्जाम इज योर एग्जांपल जेन एग्जाम माने हिसी सेटा से जेंदा बताला कांसेप्ट रो एग्जांपल भी सेटा थिसी ओके तो एग्जाम रे तुमको से जिनिस अंदर चेंजेस माने करवार अछि इथिर हमें आउ भी देखमा ओके आउ काका देखो एटा ना सरी होला एटा ना सरी जे बहुत टी जिनिस अछि देली थी इथिर बहुत टी जिनिस अछि देला हमें देखमा प्रेजेंट टेंस सरी होला बोली न भाबो प्रेजेंट टेंस रो पैसिव स्ट्रक्चर सरी होला बोली जदी भाबुछ ताले तुम भूल भाबुछ ओके मुई यहाँ खाली जनरल स्ट्रक्चर इधर लिखो जे आके आउ भी बहुत जिनिस माने अछि इथिर जानबा ओके सो योर टुडे क्लास कुमार तुम सब दिन टाइम की फ्री थी सके हाँ सर मौसमी हेलो ଠିକ फ्री थी सही टाइम के तुम भी ओके ठीक अच्छे शुभ ହଁ हमरो ସାର୍ प्रोब्लेम रहै छै हाँ तो हमको तो भल टाइम भी मिली है वो विल देखमा जेन दिन क्लास नहीं करवा टाइम रे हम क्लास नहीं ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय